Okay guys, I'm gonna start করছি video number 5. So now this is our formula, we should not forget. যতদিন জয়েন্ট এন্ট্রান্স না দিচ্ছ এটা ভোলা যাবে না ঠিক আছে so you have to remember this and look everywhere we are very interested in unity মানে what is the price of 1 kg of rice, what is the price of 1 kg of fish, what is the price of 1 liter of mustard oil, right? What is the price of 1 meter of cloth, right? So everywhere we generally ask कि 1 किलो कतो दाम, 1 केजी का दाम कितना है, 1 मीटर का दाम कितना है. So similarly people wanted to bring that concept over here. That is, I told you कि here is Q and another charge small q is over here and they are put at a distance r apart and the medium between them has a dielectric constant k, right? Now if I put unit charge over here, this is called a test charge. এটাকে বলে test charge. So if you put 1 coulomb charge over there, then it becomes this now. Why? You have to take this over here. Then it becomes this. Ki force on a charge small q is this. So force on unit charge is this. Okay. It ঠান্ডা হয়ে গেছে, গরম করে দিতে বলো চাটা. Okay. And this quantity, that is the force per unit charge, it is given another name. This is called electric field intensity. This is called electric field intensity. Okay. So why this type of name is given? Because it implies the intensity or intenseness of the force, how strong the force is. ये जितना बड़ा होगा है ना, उतना यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा काम करेगा, राइट? ए जितना बड़ा होगा, ए जितना छोटा होगा, उतना ज़्यादा फोर्स काम करेगा किसके ऊपर? यूनिट चार्ज के ऊपर, राइट? सो इट शोज द इंटेंसनेस और द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स. दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. होपफुली क्लैरिफाइड. सो नाम में कुछ नहीं रखा है ना, कहाँ पे क्या रखा है बोले सर समझने में. सो व्हाट दे आर सेइंग कि इट इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट चार्ज. So it shows the intenseness of the force. So this is called the electric field. Hopefully I have clarified to everyone, right? Hopefully yes. And then, so this is the concept of electric field, and it was my third concept I shared with you. So this is the electric field, and this is denoted by capital E. This is denoted by capital E. Hopefully I have clarified to everyone. It is nothing but force per unit charge. Now, I'm going to go to the concept of, I'm going to share my fifth knowledge, and that is about concept of work done and potential energy of the system, comprising of two charges.
दिस इज आवर न्यू हेडलाइन कि look, when people sit at Ravindra Swadam with his or her corresponding partner, they're called couples, right? And here the couple is called system. In physics में couple को क्या बोलते हैं? System बोलते हैं, है ना? जैसे बंगला में हम लोग भात बोलते हैं, इंग्लिश में राइस और हिंदी में चावल बोलते हैं, है ना? वैसे ही यहाँ पे कि सिस्टम बोला जाता है। तो हम लोगों के पास दो चार्जेस है जो क्या कर रहा है, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, दे आर सिस्टम एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैंने पहले ही बोला कि साइंटिस्ट लोग जो 10, 12 या 15 या 20 साल तक रिसर्च करते हैं उसको फाइनली वो लोग लिख देते हैं, वो लोग फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं, बुक में वही दिया जाता है। ठीक है ना? तो एक्चुअली देखा गया कि यहाँ पे अगर एक चार्ज क्यू है और यहाँ पे एक चार्ज स्मॉल क्यू है और इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो अगर इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं तो प्रैक्टिकल आंसर और मैथमेटिकल आंसर सेम आ जाता है। व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट कि people research for a long period of time and ultimately they get some result, and when writing what they do, वो लोग हमको क्या करते हैं, जो लास्ट में उनको मिलता है उसी को पहले दे देते हैं। सो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर दो चार्जेस है जिनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी रहता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। वो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करते हैं तो प्रैक्टिकल वैल्यू और मैथमेटिकल वैल्यू दोनों सेम आ जाता है, राइट? लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक 10 कूलम चार्ज रखा और यहाँ पे एक 10⁻⁻5 कूलम चार्ज रखा, ठीक है? तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेशन होता है वो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करते हैं, आर सपोज की 1 मीटर, तो कितना आंसर आएगा? 9 × 10⁻5 जूल, क्योंकि एनर्जी जूल में होता है और जूल लिखने के टाइम पे सिर्फ जे लिखना चाहिए, ठीक है? सो इतना आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये नाप के भी यही मिला हम लोगों को, ठीक है? जब हम लोग नापे, बांग्लाय बोले मापे, बांग्लाय बोले मापे, इंग्लिश हिंदी बोले नापे, तो जब हम लोग इसको नापते हैं, इन लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस 1 मीटर है होता है और इन लोगों का चार्जेस अगर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में होता है, तो जो आंसर मिलता है वो इतना आ जाता है, 9 × 10⁻5 जूल। दिस इज द रियलिटी। सो लोगों को पता चल गया था कि मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लाना है तो यही लाना है, इसको मुझे डिराइव करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? लाइक जैसे बोलते हैं लोग कि अगर लड़की को पटाना है तो पहले उसका कुत्ते को पटाओ राइट? अगर किसी लड़की को पटाना है तो पहले उसकी कुत्ते को पटाओ। यू हैव द नॉलेज, इवन आई हैव दैट नॉलेज, राइट? तो इन लोगों के पास इस तरह का नॉलेज होता है कि देखो पहले लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं, बैक कैलकुलेशन करके क्या आता है उसके ऊपर ये लोग तवज्जो देते हैं, इसके ऊपर उसके ऊपर ये लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि देखा गया कि इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो फिर इसी को लाना है। आई एम कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।